Hello students, in this video we will continue further with electrostatics. In the previous video we had looked at what is potential energy and what is electric potential. Okay. Previous lecture के एंड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि potential difference जो होता है it is related to your change in potential energy. So change in potential energy can be given as charge multiplied by potential difference. Now what it actually means is, let's say if there are 2 points, point A and point B, and let's say initially the charge is at point A. Now जब charge point A से point B पे जाता है तो इस process में what is the change in potential energy of the system? So it is potential energy at B minus potential energy at A. This is equal to charge multiplied by potential difference at B minus potential difference at A. ठीक है. Now if you want to find out the work done by electrostatic force, work done by electrostatic force, take force when it moves from A to B. So in this case work done is equal to minus change in potential energy minus delta U. क्योंकि हम लोग डिफाइन ही ऐसे करते हैं ना, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू इनटू डेल्टा यू कैन बी रिटन एज डेल्टा वी. सो इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू इनटू पोटेंशियल एट final position minus potential at initial position. So this is how we define, or this is how we calculate work done based on potential difference. Okay, so you have to just remember these two relationships. ये बहुत ही straight forward है. Change in potential energy is equal to charge into potential difference. When I say potential difference, it is potential at final point minus potential at initial point. ठीक है. अब ना इन रिलेशंस को थोड़ा और एक दूसरे से लिंक करना स्टार्ट करें. हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन ऐसे किया था माइनस डी यू बाई डी आर. करेक्ट. ओके. सो नाउ आई कैन राइट फोर्स एज, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो देयरफॉर आई कैन राइट एफ एज क्यू इनटू ई is equal to minus du by dr. अब ये टर्म को मैं e into dr इसको रीअरेंज करता हूं. दिस इज माइनस du by q. Now if you see over here, change in potential energy upon charge is equal to potential difference. So I can simply now write this as E dot dr is equal to minus dv. क्योंकि दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज विच इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस. सो नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर. dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr. ओके. और अदर वे अराउंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ओके. dv by dr is equal to E minus dv by dr is equal to E. In terms of vector, अब अगर जो आप देखने जाओ तो ये आपका वेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर. तो वेक्टर के टर्म्स में आप इसको कैसे लिखते हो? यू राइट इट दिस वे, E इज इक्वल टू माइनस d by dx of v plus d by dy of v in j direction plus d by dz of v k direction. हम इसको क्या कहते हैं? These are nothing but your partial differentials. So partial differential with respect to x, partial differential with respect to y, partial differential with respect to z, where v is nothing but potential in the region. सो अगर जो आपको पोटेंशियल पता हो तो यूजिंग पोटेंशियल यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर. आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो.
ठीक है, फाइन. सो दिस इज समथिंग दैट विल बी यूजिंग अ लॉट. ये एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये 3 रिलेशनशिप्स है. दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. सो अब तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन, वी हैव जस्ट रिलेटेड दीज टर्म्स. ओके, आई advise you कि please go through this section and the previous and the last part of the previous video so that आपको इन terms के बीच में exact relationship समझ में आ जाए. Okay, now हम लोग ना ये चीजें check करते हैं. Let's try to check this if this holds true or no. Okay, so let's say if you have a point charge, let's say value of charge is q and यहाँ पे point p पे, okay, this is let's say a positive charge and let's say the distance is r. Okay, now at a distance r अगर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है हम लोगों ने पढ़ी हुई है. इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, नाउ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के एंड में देखा था. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r. ओके, नाउ वी हैव टू सी वेदर दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू और नॉट. तो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r करता है. सो देयरफॉर d बाय डी आर माइनस d बाय डी आर ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू minus d by dr of 1/4 pi epsilon q by r. ओके, अब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आप इसको बाहर निकालो. सो देयरफॉर माइनस dv बाय dr इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. ये माइनस साइन है, ये माइनस भी बाहर होगा. सो यू गेट d बाय dr ऑफ 1 बाय r. 1 बाय आर का डेरिवेटिव होता है -1 बाय आर स्क्वायर. सो माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन. इसका डेरिवेटिव होता है -1 बाय आर स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज सेम एक्सप्रेशन एज ई. So this is equal to E. So therefore I can say that minus dV by dr is equal to E. ठीक है, fine. Now what would happen if you have more than one point charge? तो उस केस में आप पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे? Let's say you have 2 point charges. This is q1, this is q2, and you have to find out the potential at this point. Okay, let's say this distance is r2 and this distance is r1. Now you have to remember that potential जो होता है, potential is a scalar quantity, so you don't have to worry about the directions. Okay, only thing that you should be worrying about is signs. जो भी साइन है आपको उस एक्सप्रेशन में पुट करनी है. ओके, सो से फॉर एग्जांपल q1 इज 10 कूलम्स एंड q2 इज -5 कूलम्स. r1 इज लेट्स से 1 मीटर एंड r2 इज लेट्स से 0.5 मीटर्स. ओके, अब आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट p. So potential at point P would be equal to potential due to charge 1, that is 1/4 pi epsilon q1 by r1, plus potential due to charge 2, that is 1/4 pi epsilon q2 by r2. ठीक है, so I can now calculate this. V is equal to 1/4 pi epsilon, ये तो कॉमन में निकाल देता हूँ. q1 by r1, q1 is 10, r1 is 1, plus q2, that is -5 upon 0.5. So now this will become equal to
1/4 pi epsilon 10 minus 10 that is 0. So इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी 0 ड्यू टू दीज टू चार्जेस. ठीक है. सो आई होप यू. So the point of doing this example was to make you realize that कि अगर जो माइनस है वैल्यू तो आपको यहाँ पे माइनस कंसिडर करना है. ओके. एंड मोर एवर पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, सो यू कैन सिंपली जस्ट ऐड द टू नंबर्स. ओके. तो वैसे ही अगर जो 10 चार्जेस है तो 10 चार्जेस के वजह से जो भी पोटेंशियल होगा आप उनको ऐड करोगे. पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव होगा. Is this fine? Okay. Now what we'll do is, जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस फाइंड आउट किया है यहाँ पे, now we will find out potential due to extended charges. Okay. So first one is potential at the center of the charged ring. Center of charged ring. Okay. So let's say this is our ring. Okay. Now let's say the charge on the ring is, you have a positive charge on this ring and it is uniformly distributed. ये जो charge है ये uniformly distributed है. Okay. So let's say the charge on the ring is Q and the radius of the ring is R. R is the radius of the ring. अब आपको इस रिंग के वजह से सेंटर पे जो है वो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग. सो व्हाट आई डू इज, लेट मी कंसिडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस रिंग. इस रिंग का मैं एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करता हूं. लेट्स कंसिडर दिस एज अ स्मॉल सेक्शन. ओके. ना ये स्मॉल सेक्शन का जो डिस्टेंस होगा यहां से, इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रिंग. एंड लेट्स से इस पे जो चार्ज है, लेट मी राइट इट एज dq. नाउ दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज ना, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. एंड इस पॉइंट चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? सो दिस पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon. इट विल बी dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. करेक्ट? r स्क्वायर नहीं, सॉरी r. इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है. पोटेंशियल फाइंड आउट करते वक्त यू ओनली हैव r ओवर हियर. नाउ टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको समेशन करना होगा. सो समेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. सो योर टोटल पोटेंशियल विल बी dq डिवाइडेड बाय r. नाउ यू कैन सी दैट ऑल दीज थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट. r भी तो आपका कांस्टेंट है. आप कोई भी और चार्ज कहीं और कंसिडर करो, आपका ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल स्टिल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रिंग, राइट? सो इफ यू कंसिडर एनी स्मॉल सेक्शन ऑफ द रिंग, दिस नंबर इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/4 pi epsilon r इंटीग्रल ऑफ dq. इंटीग्रल ऑफ dq इज बेसिकली आपको इन सारे छोटे छोटे चार्जेस को ऐड करना है. So it is equal to q divided by 4 pi epsilon r. ठीक है. So this will be the potential at the center of the ring due to these charges. Up second, we will find out the potential at the axis of the ring. At the axis of the ring. Okay. So what I do now is, मैं एक रिंग कंसिडर करता हूँ. लेट मी कंसिडर अ रिंग ओवर हियर. ओके. लेट्स से दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. You can see over here, even if the ring is not uniformly charged, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. हमने क्या किया है, बस एक छोटा सा पार्टिकल लिया है, इसके वजह से हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे.
एंड उसको इंटीग्रेट किया है. वी हैव नॉट अज्यूम्ड एनीवेयर दैट ओके द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, या फिर हम लोगों ने ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं पे भी यूज नहीं किया हुआ है. सो आई राइट दिस expression is correct even for non-uniform distribution, even for non-uniform distribution of charge. ठीक है. Now next is we have to find out the potential on the axis of the ring. So this line becomes the axis. Okay. So let's consider a point over here at a distance x. Let's say the radius of the ring is r. Okay. Now यहाँ पे वापस what we will do is we'll consider a small part of this ring. यहाँ पे the charge will be dq. इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? So let's say this distance is r. By Pythagoras theorem, I can write this as r square plus x square. So therefore, I can write potential at this point dV due to the small element dq, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon dq divided by your distance r. Now dV is equal to 1 upon 4 pi epsilon dq divided by square root of r square plus x square. Now if you see over here, आप कहीं और भी ये पॉइंट दे दो. Okay, you consider any element of the ring. आपका रेडियस ऑफ द रिंग तो चेंज नहीं होगा, तो दिस विल स्टिल बी सेम. ना ही इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से चेंज होगा. सो इवन दिस इज सेम. So if this is same, आपका ये जो टर्म है this will be constant. तो ये constant है एंड ये constant है. तो अगर जो मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये सारे टर्म्स बाहर आ जाएंगे. 1 upon 4 pi epsilon. ठीक है. You will have square root of r square plus x square into इंटीग्रल ऑफ dq. इंटीग्रल ऑफ dq मतलब ये सारे छोटे छोटे चार्जेस को आप ऐड करते जाओ. So what you are going to get is Q, the total charge on the ring. So this is potential on the axis. यहाँ पे भी आप देखो हमने कहीं पे भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये अज्यूम ही नहीं किया हुआ है. So we have not. So this expression is correct even for non-uniform charge distribution. आप लिख देना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आप यहाँ पे लिख देना. ठीक है. Now next what we will do is we'll find out potential on the axis of the disk. On the axis of the disk. ठीक है. Now let's consider a disk. Okay. Okay, let's say this is a disk. Okay, this line becomes the axis of the disk. Let's say the charge on the disk is q, radius of the disk is r, and हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. विल सी कि हम लोग ये कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. लेट्स सी. लेट्स अभी तो मान के चलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. सो इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, हर जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वुड बी कांस्टेंट. सो लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी surface charge density would be equal to charge divided by the total area of the ring disk, that is pi r square. Okay, so यहाँ पे ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है.
पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको किसी तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, हम लोगों ने ये ऐसा देखा हुआ है कि आप डिस्क को ना ऐसे इस तरह से रिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। सो लेट्स से एट अ डिस्टेंस x, और x नहीं देते क्योंकि x हमें ये यूज करना, लेट मी यूज दिस एज x, so let me consider this as r. Okay, at a distance r, let me consider a small ring, a very thin ring. Okay, okay, the radius of the ring is small r, the thickness of the ring is dr. Okay, so सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि इस पतले से रिंग पे कितना चार्ज होगा, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस रिंग। The ring is equal to surface charge density, that is sigma, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस रिंग। एरिया ऑफ दिस रिंग हमें पता है कैसे कैलकुलेट की जाती है, इट इज सर्कमफरेंस 2 पाई आर इंटू थिकनेस, दैट इज डी आर। सो दिस बिकम्स इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। सो यहाँ पे ये पाई और पाई कट हो जाएगा। सो आई गेट दिस चार्ज डी क्यू एज 2qr dr upon r square. This is the charge dq on this ring. Okay. Now potential at a distance x. How much is the potential at the distance x? हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. Okay. So dv is basically potential at distance x from the ring is equal to, let's use this expression, so 1 upon 4 pi epsilon q, so charge is dq divided by ये r is basically the radius of the ring, तो हमारे केस में radius of the ring is small r, so this will become equal to r square plus x. x is the distance, ये distance हमारे केस में ये x है, so ये r square plus x square. So I write this as 1 upon 4 pi epsilon 2qr dr upon r square into r square plus x square. ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा. वी विल सॉल्व दिस. ओके, सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, आई कैन जस्ट राइट इट प्रॉपरली. सो dv बिकम्स इक्वल टू, ये कट हो जाएगा 2. सो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है देखो, q 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ये q बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है. आपको ये पता है कि ये जो r है, दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस रिंग. r वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R. अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ओके, नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस? टू सॉल्व दिस हमें सब्सटीट्यूशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. तो या जो नीट स्टूडेंट्स है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, एंड जो मैथ स्टूडेंट्स है, आप जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस. सो दैट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू, लेट्स से y. सो इफ आई टेक द डेरिवेटिव 2r dr, x तो आपका कांस्टेंट है. सी x क्या है, इफ यू सी ओवर हियर, x इज दिस डिस्टेंस ना, ये तो आपका चेंज हो नहीं रहा, आपका बस ये r वेरी कर रहा है.
x is anyway constant, तो x square is also constant, उसका डेरिवेटिव 0 होगा. This will become equal to dy. So r dr is equal to dy by 2. ठीक है. Now if I put that expression over here, so what I'll get is dv is equal to 1 upon 2 pi epsilon q by r square. R dr can be written as dy by 2, and square root of r square plus x square can be written as root y. That is y raised to 1 by 2. Okay. अब आपको इसका इंटीग्रल करना है. सो v इज इक्वल टू, ओके, ये क्या क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, एंड y रेज टू माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रल हो जाएगा y रेज टू 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2. ओके, so this is equal to v becomes equal to 2 1s are 2 2s are, so it will be 1 upon 2 pi epsilon q by r square, and y is nothing but this, right, r square plus x square. So let me write it as r square plus x square. R varies from 0 to capital R. So if I put the values now, I'll get the expression as 1 upon 2 pi epsilon q by r into square root of r square plus x square minus x. This is the potential on the axis of the ring. Potential on the axis of the ring. एक्सिस ऑफ द डिस्क, सॉरी, रिंग तो हम लोगों ने वो एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया था, राइट. इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने रिंग एलिमेंट कंसिडर किया और फिर इंटीग्रेट किया. बट दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. हम लोगों ने वो देखा, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस. उसके बाद हम लोगों ने ये देखा पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क. एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये यूज किया हुआ है कि द डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. ये हमने कहाँ पे यूज किया है? वी हैव यूज्ड दिस ओवर हियर बिकॉज द डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. सो दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया एंड उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है. Is this fine? ठीक है. We will do one more. और एक ये करता है, वो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब आई जस्ट इनिशिएट इट फॉर यू. पोटेंशियल ड्यू टू थिन रॉड विच इज अगेन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. ठीक है, which is again uniformly charged. So let's say this is the rod. Okay. अब आपको at a distance, let's say यहां से at a distance d आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. Okay, let's say lambda is linear charge density. Charge density. ठीक है. Fine. So plus 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 plus. Fine. Now ऐसे केस में आप क्या करोगे? See, if you consider let's say the length of the rod is L. आप कोई भी एक छोटा सा सेक्शन इस रॉड का कंसिडर करते हो, ठीक है. लेट्स से इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर एंड इसका जो थिकनेस है दैट इज dx.
नाउ द प्रॉब्लम इज आप जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट्स पे जाओगे तो इस छोटे से सेक्शन का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो वेरी करता जाएगा. अभी ये जो डिस्टेंस है दैट इज d प्लस एक्स एंड योर x इज नॉट कांस्टेंट ना, x इज कंटिन्यूसली वेरिंग. तो ऐसे केस में हमें वापस इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी होगी. तो आप क्या करोगे, इस छोटे से सेक्शन पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू वुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स. ओके, एंड इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, योर पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन द चार्ज ऑन दिस दैट इज डी क्यू divided by a distance that is x plus d. So dv will become equal to 1/4 pi epsilon. Okay, dq can be written as lambda into dx upon x plus d. Now therefore my total potential would be equal to, मुझे इसको integrate करना पड़ेगा. So when I integrate this, what I'll get is lambda upon 4 pi epsilon into ln of 1 by x plus d का इंटीग्रल होगा ln of x plus d, where x varies from 0 to L. ओके, एंड आपको ये लिमिट्स पुट करोगे तो यू विल गेट पोटेंशियल एज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ln of d plus L divided by d. So I hope you have understood how to find out potential in various cases. Okay. अब तक हम लोगों ने कहीं पे भी ये यूज ही नहीं किया हुआ है कि dv by dr so is equal to minus e. But next video में what we will do is we'll find out the potential due to sphere, charged sphere. Okay, potential, equipotential surfaces की बात करेंगे. तो जब ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग वो कंसेप्ट जो है वो यूज करेंगे. ठीक है, फाइन. आई स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर. प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन एंड ये सारे जो डेरिवेशंस है वो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. ठीक है, फाइन. थैंक यू.